Good morning, my dear student. Today we will lead your class 12th history, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi and the nationalist movement. My dear student, if you have remembered my previous class, where I have already discussed about the biography and the some incidents which happened during 20th century when Gandhi reached India. These are all that was discussed by me in my previous class. Today we will focus 1909 to 1922. That era was very important because in that era the Indian political scenario gradually changed because कि अब गांधी जी अपने को पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर चुके थे. What I told you that during that time Mr. Gandhi they proved that he was the actual leader for the workers and peasants and the Indian peoples. Indian peoples took them as a masiha. They felt that Gandhi free what? Gandhi gave him या गांधी उनको स्वतंत्रता दिलाएंगे. गांधी provided the freedom. They freed from the Britishers. And as you know that I have already taught you about that the previous movement which happened in India by Mr. Gandhi, like Pashmi Champaran, the Indigo disputes, and then after Kheda, and then after Ahmedabad. What happened there? In Ahmedabad and Kheda and Champaran, we had seen that Mr. Gandhi supported the peasants and workers. That was the first time when Gandhi directly involved himself in the peasants and workers movement. And if you remember, I told you that before and after that, especially after that movement, Gandhi never involved himself in such type of other movements. It is very strange that Gandhi was saying that without the involvement of the common people, we cannot become free, we cannot अपने देश के प्रति जागरूकता तब तक नहीं आएगी, देश तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कॉमन पीपुल के मन में देश के प्रति ये सोच नहीं उत्पन्न होगी कि हमें स्वतंत्र होना है. अंग्रेजों का भय उनके दिमाग से नहीं खत्म होगा. इट मीन्स वेन एवर द कॉमन पीपुल हैव नॉट लेफ्ट और किक्ड आउट द फियर ऑफ ब्रिटिशर्स इन देयर माइंड, वी कैन फ्री. And second, if you remember, I told you that there were three main aims of Mr. Gandhi. That was first, the unity of Hindu and Muslims. Second, the conditions of women should be क्या होना चाहिए? सुधारना चाहिए उसको और आगे बढ़ाना चाहिए. महिलाओं की स्थिति में सुधार, reform of the women's condition in India. And third, I told you that the national education and the क्या एक ऐसी सोच जो समानता लाए, untouchability. These are the three main aims of Mr. Gandhi. When Gandhi visited whole India, they decided that at any rate, at any cost, I will implement it that in whole India for their own Indians. अपने लोगों के लिए नियम वो लगाएंगे. Before start this topic, 1990 to 1922, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh, Khilafat and non-cooperation movement, I would like to inform you that the conditions which happened in India. In 1915, the Lucknow, especially in 1916, the Lucknow Pact happened. 15-16, why I am telling? Because ये एक सबसे महत्वपूर्ण है कि लखनऊ पैक्ट हुआ. लखनऊ पैक्ट में 1960 लखनऊ पैक्ट 1960 लखनऊ पैक्ट. According to that,
Hindu and Muslim League, sorry, I mean to say that Congress and Muslim Leagues, they decided that they will fight against Britishers to cooperate with each other. दोनों ब्रिटिशर्स से युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, उनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे, एक साथ एक मंच पे। लखनऊ पैक्ट में ये स्वीकार किया गया था। फिर हमने बात की कि किस तरीके से लखनऊ पैक्ट के बाद होम रूल लीग चला। होम रूल लीग में भारतीयों ने मांग की, स्पेशली एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, कि हमें स्वशासन की प्राप्ति हो। होम रूल लीग दैट वाज स्टार्टेड in 1960 by बाल गंगाधर तिलक and एनी बेसेंट। Mrs. Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak, both Annie Besant, they were liberals, and Bal Gangadhar, they were extremists. But during that time, both accepted that without cooperation with each other, they cannot fight against Britishers. So they started the Home Rule League, and they asked for Britishers to provide them some authority to rule down the local administration. Home Rule वर्ड दैट इज आश्रयाई वर्ड। होम रूल का मतलब यही था कि एक शासन के अंदर एक अपना शासन स्थापित करना। होम रूल बहुत तेजी से विकसित हुआ। होम रूल का विकास, होम रूल तेजी से पूरे भारत में फैलने लगा। लेकिन होम रूल के बाद जो डिमांड हुई, मांग हुई, गांधी ने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी ने कहा कि हमें ये होम रूल, गांधी होम रूल तक नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे। गांधी ऑब्जर्व कर रहे थे इन सारी चीजों को, इन सारी घटनाओं को। होम रूल के बाद की घटनाएं कुछ ऐसी हुई जो नेशनल मूवमेंट में एक नया परिवर्तन लाई। होम रूल के बाद मैंने 3 घटनाओं की बात की थी। चंपारण 1917, देन आफ्टर खेड़ा एंड देन आफ्टर अहमदाबाद 1918। गांधी ट्राइड टू एस्टेब्लिश देयर फुट इन इंडियन पॉलिटिक्स। अपना पैर जमाना चाहते थे। Gandhi tried to prove himself as a unique leader in India, as well as he did in South Africa. One and only one leader in India, that is Gandhi. Gandhi tried to prove, and Gandhi did it. And it was the golden time for the Gandhi when Firoz Shah Mehta and Gopal Krishna Gokhale, they were died, and after that, in 1920, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, who was a famous leader in India, he also died. The whole stage, the Indian politics stage, no one leader competed them. So Gandhi launched himself in Indian politics as a greatest leader, as a prominent leader. I am not telling greatest leader, I am telling the prominent leader. जब बड़े नेता कांग्रेस से हट गए और जो बड़े नेता उनके अलावा थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जैसे श्रीमती एनी बेसेंट, जैसे इस तरह के तमाम साइना, इन लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया जब गांधी ने कांग्रेस से एक नया मूवमेंट चलाने की बात कही। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत भारत को द्वैत शासन, ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट दे दिया गया, जिसकी डिमांड होम रूल लीग में की गई थी। लेकिन गांधी और गांधी जैसे कुछ अन्य नेताओं ने कहा कि ये होम रूल लीग की जो डिमांड्स थी, जिसको कुछ कमोबेश करके ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन में दिया गया है, द्वैत शासन प्रणाली में हमें मिला है, ये व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। गांधी ने यहां पे स्वशासन की जगह स्वराज्य की मांग की। गांधी आस्क्ड फॉर दैट देयर इज नो नीड ऑफ स्वशासन, वी वांट स्वराज। एंड गांधी promised their people that if everyone followed the Gandhian type of protest against Britishers, Gandhi provide them in 1 year the freedom. 1 साल में गांधी क्या देंगे? स्वराज दे देंगे। They will provide freedom in only 1 year. 1 साल के अंदर ही अंदर गांधी ये दे देंगे। गांधी के सारे मूवमेंट चल रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे भारतीय राजनीति को,
भारतीय जनमानस को हिला के रख दिया. आई मीन टू से दैट ड्यूरिंग दैट टाइम 1919 to 1922 some incident happened which changed the whole scenario of Indian politics. Not only Indian politics but also the Indians' mind and their belief that has totally changed. उनकी विश्वास, उनका दिमाग पूरी तरीके से बदल गया. Someone felt that the Britishers they were what they are doing in India. जब वो कर रहे थे what they are doing in India, what they were doing in India, that was in favor of the British. I mean in favor of the British India and people. भारतीय जो देश, भारतीय समाज था, उनके फेवर में वो सारी चीजें थी जो वो उसमें कर रहे थे. कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था. लेकिन जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं ने इन विश्वास को तोड़ दिया. इन घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात थी रॉलेट सत्याग्रह. Why they passed Rowlatt Satyagraha? Why they passed Rowlatt Satyagraha? Because if you will minutely observe about the time period of the Gandhian era, before Gandhian era, 1905 to 1919. Before Gandhian era, 1905, I am telling about that time, 1905 to 1919. That era, the extremist group, they were what? जो इनका एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उसमें वो तेजी से फैल रहे थे. ब्रिटिश इंडिया इनको दबाना चाहती थी, रोकना चाहती थी, और इस रोकने के लिए ब्रिटिश इंडिया ने एक एक्ट पारित किया. दैट वाज द रॉलेट एक्ट. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, everyone who took as a suspected people, he was arrested by the Britishers. There were no trial, there were no, कोई न सुनवाई होगी न कुछ होगा. There were no trial, there were no lawyer, and there were no court. Without hesitations, he was imprisoned in jail. That was totally against the right of the Indian people, and that was totally in favor of the British Empire. British Empire, I mean to British rule, I mean to say that British officials, they wanted that such type of rule introduced. Why? With the help of that rules, they can suppress the extremists in India. They were flourish day by day. They were what? लोगों के सामने कंपटीशन प्रस्तुत कर रहे थे, लोगों के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो. तो ये रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट काम किया गया. मैंने आपसे कहा, इन चीजों को मैंने कहा कि ये रॉलेट एक्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि टाइम पीरियड ऐसा था जब भारत में एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे. मैंने आपसे ये भी कहा कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड इन्फॉर्म यू that Montagu-Chelmsford reform that was happened in 1919, and the demand which was asked for the Indian leaders, Indian liberal leaders, that has given by British Empire. 8 July 1918 Montagu-Chelmsford की जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को द्वैध शासन के तहत कुछ अधिकार दिए जाते हैं. मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी, जो प्रोक्लेमेशंस थी, उसको बहुत सारे नेताओं ने सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी. परंतु जो लिबरल्स थे, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन लोगों ने इसकी काफी तारीफ की. सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 17 अगस्त 1918 ईस्वी को क्या हुआ, एक सभा करके रिपोर्ट का स्वागत करके भारतीय राष्ट्रीय लिबरल संघ बना दिया गया, नेशनल लिबरल लीग का गठन कर दिया गया. अखिल भारतीय उदारवादी संघ का विकास हुआ. कांग्रेस के उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा तक कह दिया. लेकिन इस नियम ने बहुत सारे बदलाव किए. इस नियम में कुछ ऐसी चीजें थी जो भारतीय राजनीति के पूरे अगेंस्ट थी. जैसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट भी कहते हैं.
Montagu Chelmsford Reform, that was also known as Indian Administration Act 1919. According to that, what? कि जो प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनका आकार बढ़ा दिया गया। अब इसके साथ ही साथ कहा गया कि अधिकांश जो मेंबर आएंगे वो डायरेक्ट इलेक्ट होकर आएंगे। प्रांतों में पहली बार डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया गया। इस डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का जो जन्मदाता था उसको लॉरेंस कर्टिस के नाम से जानते हैं। लॉरेंस कर्टिस ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो जन्मदाता बनाया था, फाउंडर कहता है। इसमें क्या व्यवस्था थी? कहता है कि कुछ रिजर्व एंड कुछ ट्रांसफर, दो तरीके के सब्जेक्ट रखे गए। रिजर्व में क्या होंगे? जो आरक्षित होगा, और एक हस्तांतरित, दो भागों में बांटा गया। जो आरक्षित है उसमें कौन कौन से विषय आएंगे? ऐसे फिनांस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, फेमाइन, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसीज, कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव। और जो दूसरा था, इट मीन्स जो हस्तांतरित थे, हस्तांतरित में वो विषय रखे गए जो कम महत्व के थे, जैसे उसमें एजुकेशन, हेल्थ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे विषय स्थानीय रखे गए। पहले जिसकी बात मैंने की, मैंने कहा कि फिनांस, मैंने कहा कि सिक्योरिटी, मैंने कहा कि होल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वाज इन हैंड ऑफ द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। एंड सेकेंड, हेल्थ, एजुकेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज गिवन टू द नेटिव पीपल ऑफ इंडिया, दैट हैज दे आस्क्ड इन होम रूल लीग। होम रूल लीग में जो मांग कर रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो, इस व्यवस्था के कारण, इस तरह से होम रूल लीग को पास कर, होम रूल लीग के जो डिमांड्स थे उसको पूरा करके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा स्टेप लिया जैसे भारतीय कांग्रेस में दो धड़े हो जाए, भारतीय कांग्रेस दो पार्ट में टूट जाए। ये दो पार्ट में टूटना ये कांग्रेस के फेवर में, ये कांग्रेस के फेवर में नहीं, बल्कि इंडिया के फेवर में नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स के फेवर में होता। और उन्हें चाल चली, ट्रिक चला, और उन्होंने ये राइट्स दे करके भारतीय कांग्रेस के एक बड़े वर्ग को भारतीय कांग्रेस से अलग कर दिया। यहां पे एक सोची समझी चाल कहता तो उन्होंने स्टेप लिया। कहता है कि इस जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, इस व्यवस्था में गवर्नर अपने मंत्रियों की सहायता से काम करेगा। केंद्र भी जो सेंट्रल है वो भी द्विसदनीय व्यवस्था के तहत काम करेगी। जो लोअर हाउस है अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 144 मेंबर्स होंगे, जिसमें 41 नॉमिनेटेड होंगे। और ऊपरी सदन जो अपर हाउस है अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों में से क्या होंगे, 26 नॉमिनेट होंगे और 34 चुन के बाहर से आएंगे। गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रांतीय सरकारों पर आवाज नियंत्रण था, उनका वोट का अधिकार भी बहुत सीमित था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ही पहली बार भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई, लोकसेवा आयोग बना, और फिर विधानमंडल में बजट पास करने के संबंध में पहली बार भारतीयों को यह अधिकार दिए गए। प्रत्येक वर्ष बजट के प्रस्ताव दोनों सदनों में रखे जाते थे। इस प्रकार 1919 ईस्वी के जो अधिनियम द्वारा पंजाब के सिखों और मद्रास के गैर ब्राह्मणों को पृथक इलेक्टोरलशिप दे दी गई, पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट गिवन बाय ब्रिटिशर्स टू नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउथ ऑफ इंडिया एंड द सिख ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। अब यहां पे भी उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम किया। अगस्त 1918
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बंबई में एक विशेष सेशन बुलाया गया। इस सत्र में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा दिए गए सुधार थे, रिपोर्ट्स थे, उस पर चर्चा की गई। इन प्रस्तावों पर इन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को टोटली क्या गया, निराशाजनक बताया गया। कहा गया कि ये क्या है, ये पूर्णतः असंतोष उत्पन्न करने वाले हैं। इनकी जगह प्रभावी स्वशासन की मांग रखी। तिलक ने इस अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषजनक बताया और कांग्रेस ने इस अधिनियम के अंतर्गत 1920 में आयोजित चुनाव का बहिष्कार किया। अब यहां से शुरू होता है आपका ये रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह। 1919 टाइम 1919 क्या था रॉलेट एक्ट? फर्स्ट वी वांट टू नो रॉलेट एक्ट एंड देन आफ्टर विल डिस्कस रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट क्या था? यह था भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट के बढ़ते हुए प्रभाव को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। ये कमेटी जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस तरह क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाया जा सके, उनके षड्यंत्रों को विफल किया जाए और इनका मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक कानून पारित किया। यही कानून रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने की थी। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। एक विधेयक, 2 एक्ट पारित किए गए। एक एक्ट ऐसा था जो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरा जो क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम था, एक्सट्रीमिस्ट एंड एनार्किस्ट एक्ट, that had passed 18 मार्च 1919 को यह पारित कर दिया गया और इस अवधि को 3 वर्ष रखी गई। कब तक की रहेगा? तो कहता है 3 years। आई एम टेलिंग दैट ड्यूरिंग 1917-18 that was the very critical time for the Britishers. During that time, the extremists, they tried to come in power. They tried to kick out the British rulers in India. So that's why it is need of British administration that they had passed act to suppress the extremist activities. In 1918, Sidney Rowlett given their reports, which was suggested that by which way we can suppress British, I mean to say that extremist leaders. सिडनी रॉलेट ने भारत में एक्सट्रीमिस्टों को दबाने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पास 2 एक्ट, नॉट सॉरी, इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली देयर वर 2 एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, बट 1 एक्ट that has passed, which was the Extremist and Anarchist Act. According to that, no one have right to ask question if police have the vast power, बहुत बड़ा उसको अधिकार दिया गया। पुलिस है राइट टू अरेस्टेड दोज पीपुल हु, आई मीन टू से दैट, पुलिस को जो भी ऐसे लोग लगे कि वो सस्पेक्टिव हैं, उनके ऊपर चार्ज लगा करके पुलिस उन्हें अरेस्ट कर सकती थी। यही थी रॉलेट सत्याग्रह, यही थी रॉलेट एक्ट। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था, साथ ही उसे निश्चित काल के लिए जेल में रखा जा सकता था, अनिश्चित काल के लिए। इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का एक्ट कहा गया। ये एक्ट भारतीय
प्रशासन के लिए, भारतीय लोगों के लिए एक अत्यंत ही विषमकारी एक्ट था, कानून था। भारतीय नेताओं ने इसे पूरी तरीके से काला कानून कहा। इसे भारत में सारे नेताओं ने बाइकआउट करने की बात की। काला अधिनियम, आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। गांधी जी का अब तक भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। जो देशव्यापी उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया, इसे ही रॉलेट सत्याग्रह के नाम से आते हैं। सत्याग्रह सभा का गठन करके उन्होंने इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया। पहले 30 मार्च को आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली में 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। वहां पर भीड़ पर गोलियां चलाई गई और करीब 5 आंदोलनकारी मारे गए। इसके बाद बंबई, अहमदाबाद, देश के कई नगरों में रॉलेट एक्ट का व्यापक विरोध किया गया। लाहौर एवं पंजाब में भीड़ पर गोली चलाई गई। स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले, परंतु मार्ग में ही 8 अप्रैल 1919 को गांधी पलवल में अरेस्ट कर लिए गए। पलवल, दैट वाज द प्लेस, नाउ दैट टाइम इट इज इन हरियाणा। गांधी पलवल में अरेस्ट कर लिए गए। पलवल, दैट वाज द प्लेस सिचुएटेड इन नाउडेड इन हरियाणा। एंड अब यहीं से लोगों के मन में अराजकता, लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध और नफरत का भाव पैदा हुआ। अब यहीं पे एक ऐसी घटना घटी जो पूरी तरीके से भारतीय इतिहास में ब्रिटिशर्स को अनसिविलाइज्ड, ब्रूटल प्रूफ करती है। दैट वाज जलियांवाला बाग मसकेयर। व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रॉलेट सत्याग्रह। In 1919, Gandhi ji gave a call for satyagraha against the Rowlatt Act that the British had just passed. The act covered fundamental rights such as the freedom of expression and strengthened police power. Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah and others felt that the government had no right to restrict the people's basic freedom. They criticized the act as devilish and tyrannical. Gandhiji asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act. As a day, the humiliations and prayers and the hartal, it means strike, satyagraha sabha were set up to launch the movement. The Rowlatt Satyagraha turned out to be first all Indian struggle against the British government. Although it was largely restricted to cities. In April 1919, there were a number of demonstrations and hartals in the country, and the government used the brutal measures to suppress them. Died in Amritsar on Vaisakhi Day 13 April 1919 were a part of this repression on the learning about the massacre. It means जलियांवाला बाग मस्केयर। ये क्या कहा गया? जलियांवाला बाग मस्केयर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया, जिसको जनरल डायल ने आवाज। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसी घटना थी 1919 अप्रैल में जो हुई। इसने न केवल भारतीय नेताओं को बल्कि पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजों का दोहरा चरित्र प्रस्तुत कर दिया। इस रिवोल्ट ने एक क्लियर मैसेज दिया नेशन को कि ये जो व्यवस्था है ये पूरी तरीके से भारत में डे बाय डे अपने बुरे कंडीशन में चलती जा रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड
पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी. I mean to say that those Indian leaders who are not interested in national politics, having seen that Jallianwala Bagh massacre, they decided to protest the British rule. The various leaders, Mr. Gandhi, what? Gandhi and Tagore, Rabindranath Tagore, expressed the Jallianwala Bagh, the pain and the anger of the country by renouncing his knighthood. During the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure the Hindu and Muslims were united in fight against British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi's, who always saw India as a land of Ali and the people of India as a land of all the people who lived in the country. It means Ali and Hindu God कोई भी नाम ले ले, दोनों की यूनिटी की बात करते हैं. Hindu Muslims and those of other religions, he was keen that Hindu and Muslims support each other in any just causes. I told you that Gandhi was decided that without unity of Hindu and Muslim, we cannot succeed in our aim, because India that has unity in diversity. The various groups, various class, caste, ethnic groups, religion, they were lived in India and supported each other. So that's why Gandhi changed them. In my next class, I will discuss about the Jallianwala Bagh massacres. We will start the Jallianwala Bagh massacres. आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.